We are going to explain, learn the chapter number 4 of grammar, pronouns. First, let's see what is pronoun. Let's see. Pronoun is a word we use in place of noun. It helps us refer to the noun and avoid repeating. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है वो नाउन की जगह यूज़ होता है और जो नाउन बार बार रिपीट होता है उसको अवॉइड करता है. प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम. नाम की जगह पर जो शब्द यूज़ किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड वी यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन. इट हेल्प्स अस टू रिफर अ नाउन एंड अवॉइड रिपीटिंग इट. Now let's see types of pronouns. We are going to explain, learn the types of pronouns. First, we are going to learn about the personal pronoun. These are I, we, you, it, me, she, they, him, he, her, them, us. These are personal pronouns. They can be used on the place of nouns, singular nouns and plural nouns. The example of personal pronoun is I was playing a game. I is the word which is used on a place of noun. I है वो एक ऐसा वर्ड है वो नाउन की जगह पर यूज़ हुआ है. मतलब मोहन वॉज प्लेइंग अ गेम, तो मोहन की जगह हमने यूज़ किया है आई वॉज प्लेइंग अ गेम. सो ऑन द प्लेस ऑफ नाउन the word is used that is called pronoun. So I is a personal pronoun. Second one is possessive pronoun. Mine, yours, hers, his, its, ours, theirs. This is called possessive pronoun. Let's see the example. The example of possessive pronoun is this pen is yours. This pen is yours. And second example of possessive pronoun is this painting is hers. So yours and hers are possessive pronoun. Now demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are this, that, this. These are demonstrative pronouns. These, that, those, these. That is a pen. So that is a demonstrative pronoun. ये बताता है that, this. That's why this is called demonstrative pronoun. If there is singular, then these and this, that. If there is plural, then we will use those or these. This demonstrates, that's why this is called demonstrative pronoun. Now
The fourth one is reflexive pronoun. Let's see reflexive pronoun. These are the reflexive pronouns: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. These are the example of reflexive pronoun. The example of reflexive pronoun: Amita taught herself how to bake. Amita taught herself how to bake. So herself is a reflexive pronoun. Now, emphasizing pronoun: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Example: Gina made these herself. Gina made these herself. This is a laying stress, emphasize. That's why this is called emphasizing pronoun. Let's see what is difference between emphasizing and reflexive pronoun. Reflexive pronoun is an important part of sentence. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर उसको रिमूव कर दोगे तो मीनिंग रहेगा नहीं. ये खास याद रखना. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से अगर सेंटेंस में से अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकाल दोगे तो सेंटेंस मीनिंग नहीं करेगा. लेकिन एम्फेसाइजिंग में से अगर एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउन है उसको सेंटेंस में से निकाल दोगे तो सेंटेंस में कोई चेंज होगा, मीनिंग में कोई चेंज होगा नहीं. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस. इफ यू रिमूव इट द सेंटेंस विल नॉट बी कंप्लीट. अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिमूव करेंगे तो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा. Whereas if an emphasizing pronoun is removed, the sentence will still make complete sense. लेकिन emphasizing pronoun है, अगर उसको रिमूव करोगे तो भी सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग करेगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन emphasizing pronoun and indefinite pronoun. Now, indefinite pronouns. These are the indefinite pronouns: somebody, someone, something, anyone, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing. These are the indefinite pronouns. The example of indefinite pronoun is nobody came to collect money. Nobody came to collect money. Now, interrogative pronoun: who, whose, whom, what, which. These are interrogative pronouns. Example: whose this bag is. Whose this bag is. तो यहाँ पे जो हु है वो इंट्रोगेशन करता है, पूछताछ करता है, इसलिए उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आता है, अगर WH क्वेश्चन हुज के बाद अगर नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है. मतलब हुज पेन इज दिस, हियर इट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. Now, distributive pronoun, distributive pronoun: each, either, and neither. Example: each of the girls was given a present. Here,
इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. नाउ द लास्ट वन, रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन pronouns are who, whom, which, whose and that. ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वो इंट्रोगेशन करते हैं, और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दो सेंटेंस के साथ जो रिलेशन है वो बताते हैं. द मैन हु इज फेमस आर्टिस्ट कैम टू आवर स्कूल. तो यहाँ पे हु है, वो मैन को इस सेंटेंस के साथ जोड़ता है. सो मैन, यहाँ पे हु का मतलब होता है कि जो. द मैन हु इज फेमस आर्टिस्ट कैम टू आवर स्कूल. सो these are the pronouns we have explained. Now we will move to the exercises. Now let's see the first exercise of A. Underline the pronouns in this sentence and state what kind they are. जो इसमें जो प्रोनाउन है वो कौन से है वो हमें बताना है. जो पहला है वो दिया हुआ है, एनीवन एंड समथिंग. would anyone like something to eat? So this is indefinite pronoun. And the second one is, we will be late if you don't wake up now. तो यहाँ पे you है वो पर्सनल प्रोनाउन है. I, we, you, he, she, it, they. we है वो भी पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि we है वो भी जो पर्सन से उसकी जगह यूज हुआ है, और you है वो भी पर्सन की जगह यूज हुआ है. थर्ड वन, आरवा लॉक्ड herself out of the house by mistake. तो herself is reflexive. Why it is not emphasizing? हमने उसको रिफ्लेक्सिव क्यों कहा, और ये समझना जरूरी है, क्योंकि दिस वन इज द डिफिकल्ट वन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग. तो herself क्यों? क्योंकि अगर herself है उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग होगा नहीं. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ द फोर्थ वन, दीज आर द फ्लावर्स आई लव. तो दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. क्यों? कि वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है कि ये फ्लावर्स है और मुझे पसंद है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फिफ्थ वन, द फोर्ट इज कंप्लीटली माइन. तो हम जानते हैं माइन, योर्स, हर्स, आवर्स, योर्स, दीज आर पजेसिव प्रोनाउन. और जो पजेसिव प्रोनाउन ऐसा है वो ज़्यादातर लास्ट में आता है, उसके बाद कोई नाउन नहीं आता है. मतलब दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज हर्स. सो दिस इज माइन इज possessive pronoun. Sixth one, the horse who won the race is called chestnut. तो यहाँ पे हॉर्स और सेंटेंस के साथ रिलेशन बताया है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. अगर हु है वो सेंटेंस की शुरुआत में होता तो वो इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन होता, क्यों कि वो इंट्रोगेशन करता। लेकिन यहाँ पे हॉज और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको उसने जोड़ा है, उसके साथ उसका रिलेशन है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। देखो 7th सेंटेंस, हु नोज द सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। यहाँ पे इंट्रोगेशन हो रही है, जो सीक्रेट है वो कौन जानता है, इंट्रोगेशन, पूछताछ हो रही है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे 6th और 7th है, दोनों जगह हु है लेकिन उसका काम अलग है, उसका फंक्शन अलग है। इसलिए जो फर्स्ट वन है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और जो 7th और सेकंड वन है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नाउ 8, शी विल मेक ड्रेस हरसेल्फ। यहां पे शी है वो पर्सनल है और हर सेल्फ है वो एम्फेसाइजिंग है। अगर उसको रिमूव कर दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कंप्लीट मीनिंग होगा। फिर भी शी विल मेक ड्रेस, कंप्लीट सेंस। क्यों कि एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउन है उसको अगर सेंटेंस में से रिमूव करोगे तो भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट ही रहेगा। 9, ईच ऑफ द डिशेज इज डिलीशियस। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ईच, हर एक, द एक। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ समवन लेफ्ट चॉकलेट फॉर मी। इंडेफिनेट, किसने छोड़ा है पता नहीं, चौकस नहीं, अचौकस। दैट्स वाई समवन इज इंडेफिनेट एंड लेफ्ट चॉकलेट फॉर मी। मी मीन्स राहुल। On the place of Rahul we have used personal pronoun me on the desk. Now let's move to the B. Complete the sentence with personal pronouns. Bindu and Clara are my friends. These are nouns. Bindu and Clara are nouns. But in next sentence the pronoun will be placed on these names. बार बार बिंदु और क्लेरा वो यूज करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा। सो देखो आई नो देम मतलब आई नो बिंदु एंड क्लेरा, ये अच्छा नहीं लगेगा। देम है वो पर्सनल प्रोनाउन है, हमने नाउन की जगह वो यूज किया है। एंड वी आर all in peace team together. Second one, this camera takes excellent pictures. I like it very much. जो it है वो कैमरे की जगह यूज हुआ है, कैमरा है वो नाउन है, तो नाउन की जगह जो यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन। दिस कैमरा टेक्स एक्सेलेंट पिक्चर्स, आई लाइक इट वेरी मच। हम ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, आई लाइक द कैमरा वेरी मच। तो नाउन का रिपीट ना हो इसलिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। थर्ड वन, द बर्थडे बॉय गेव स्वीट्स टू हिज फ्रेंड्स एंड दे थैंक्ड हिम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है वो भी नाउन है और दे है वो फ्रेंड्स की जगह यूज हुआ है और हिम है वो बर्थडे बॉय की जगह। मतलब बर्थडे बॉय गेव स्वीट्स टू हिज फ्रेंड्स एंड दे मतलब फ्रेंड्स थैंक्ड हिम मतलब द बर्थडे बॉय। फोर्थ वन, मदर सेड वरुण यू मस्ट हेल्प मी। यू मीन्स वरुण, पर्सनल प्रोनाउन। मदर सेड वरुण यू मस्ट हेल्प मी। हेल्प मी मतलब मदर, तो मी है वो पर्सनल प्रोनाउन वो माँ के लिए यूज हुआ है और यू है वो वरुण के लिए। मदर सेड वरुण यू मस्ट हेल्प मी इन द किचन। फिफ्थ वन, ही कंप्लीटेड हिज वर्क
and then help others. Why we have used here he only? क्यों कि यहाँ पे completed के बाद possessive adjective है. जो possessive adjective है वो his है. his है ना, इसलिए हमने वहाँ पे he यूज किया. अगर वहाँ पे completed her work होता तो हम जो blank है उसमें सी लिखते हैं. ये पूरा सेंटेंस समझ के हम fill in the blanks करेंगे तो अच्छा रहेगा. We have a good teacher. तो यहाँ पे हमने दो आंसर लिखे हैं क्योंकि टीचर है वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं. That's why सी और ही, और सी और ही है वो हमने टीचर के लिए यूज किया है. Advisors, us means the students or we, to work harder. We always listen to her or him. So these are the pronouns she or he, us, we, and her or him. Seventh one, my father told me I want you. तो देखो यहाँ पे my father told me I want you. You मतलब me, कोई कैरेक्टर. To take these papers and put them. Them मतलब क्या? Papers. तो पेपर है वो नाउन है, उसकी जगह them. In the folder, give them to me and I ask for them. So यहाँ पे you, them, me, I, these are personal pronouns. Now let's see the C. Complete this sentence with possessive pronoun. यहाँ पे मैं possessive pronoun और possessive adjective के साथ कंपैरिजन करूँगा. जैसे हमने emphasizing और reflexive pronoun में कंपैरिजन किया, डिफरेंस निकाला, वैसे यहाँ पर भी ये खास इंपॉर्टेंट है. Rita has already eaten her cake, but I will have mine after dinner. तो बेटा mine है वो possessive pronoun है, क्योंकि possessive pronoun के बाद कभी noun नहीं आता है, इसलिए तो उसे possessive pronoun कहते हैं. अगर my pen हम लिखते हैं तो my है वो possessive है, लेकिन possessive adjective है. Yours possessive pronoun. Your pen, your के बाद देखो पेन आया तो उसे हम कहते हैं possessive adjective. Now let's see. We gave them our address and they gave us theirs. देखो यहाँ पे लास्ट में हमने their address नहीं लिखा है, theirs, इसलिए ये possessive pronoun है, उनका. अगर their address होता तो वो possessive adjective होता. ये डिफरेंस है. theirs and their में इतना फर्क है. I do not have a lab coat. Can I borrow yours? Can I borrow yours? Possessive pronoun. अगर can I borrow your coat तो coat आता तो वो adjective हो जाता, possessive adjective. Fourth one, Sayantan bought a new car. The red one is his. Here, लेकिन यहाँ पे भी एक समझने की जरूरत है. His है वो possessive pronoun भी है और possessive adjective भी है ना. The red one is his. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं the red one is his car. तो both are correct. तो his can be used in both possessive pronoun and possessive adjective. Fifth one, she once got an award for a poem of hers. Possessive pronoun. her के बाद noun नहीं है, her सही है. अगर her होता तो उसके बाद में noun लगाता
लगाते और ये पजेसिव प्रोनाउन होता। मेनी फ्रेंड्स ऑफ आस गॉट अस स्वीट्स फॉर दिवाली। आर्स, our or ours. Our is possessive adjective and ours is possessive pronoun. Now let's see D. Complete this sentence with a distributive, demonstrative and indefinite or interrogative pronouns. तो ये हमें 4 प्रोनाउन यहाँ पे यूज करने हैं। वन हैज बीन गिवन, नाइदर ऑफ दिस सॉर्ट लुक क्लीन। द सेकंड वन, नाइदर ऑफ दीज स्ट्रीट्स लीड टू द पार्क। नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव, कोई भी जो स्ट्रीट है वो हमें पार्क तक लेके जाती नहीं है। थर्ड वन, दीज आर माई सॉक्स। डेमोन्स्ट्रेटिव, ये बताते हैं कि ये मेरे सॉक्स हैं और ज़्यादा है इसलिए दिस, वरना दिस होता। और फोर्थ वन में इंट्रोगेशन है, विच बुक डिड यू चूज टू बाय इन द एंड। इंट्रोगेशन, पूछताछ हो रही है, इंट्रोगेटिव। लेकिन जो ये है फोर्थ वन, विच बुक डिड यू चूज टू बाय इन द एंड, ये विच है। यहां पर भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि WH क्वेश्चन के साथ अगर नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव है। तो ये फोर्थ नंबर है, वो प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये बाय मिस्टेक यहां पे दिया गया है। जो सही एग्जाम्पल है प्रोनाउन का वो ये हो सकता है, विच इज योर बुक, और विच बुक डिड यू चूज टू बाय। विच बुक है वो तो एडजेक्टिव हो जाता है, बट अगर विच के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता तो विच है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकता। लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ नंबर के एक्सरसाइज है वो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं। सो फिफ्थ नंबर, ईच चाइल्ड इज डिफरेंट। ईच चाइल्ड इज डिफरेंट। Here also each describe the noun, so it can be adjective. This is the girl who got the first prize. Here this is a demonstrative pronoun. अगर this के बाद अगर नाउन होता तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, बट आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड। इज ऑक्सिलरी वर्ब। सेवंथ, अ प्राइज विल बी गिवन टू whoever can solve the prize. This is also pronoun. Eighth one, who can take me home. This is pure pronoun, interrogative pronoun. As क्योंकि who के बाद noun नहीं है, auxiliary verb है. Can is an modal auxiliary. That's why this is called pronoun. Now complete this sentence with the correct reflexive or emphasizing pronoun. Write R for reflexive and E for emphasizing. Very important. One has been given.
Ramona will do assignment herself. That is emphasizing. That is, अगर जो पहला एग्जाम्पल दिया उसमें अगर हर सेल्फ निकाल देंगे तो भी सेंटेंस है उसका मीनिंग मतलब उसका कंप्लीट मीनिंग होगा, इसलिए हम इसे एम्फेसाइजिंग कह सकते हैं। और रोना खुद बना रही है, सॉरी रमोना खुद बना रहा है या बना रही है, दैट्स वाई। द सेकंड वन, विशाल hurt herself while he was running down the street. This is reflexive. Why? अगर himself निकाल दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं होगा। चलो देखते हैं। विशाल hurt while he was running down the street. विशाल hurt whom? क्या? नहीं होगा ना। So this is a reflexive pronoun. He himself made the observation. Emphasizing निकाल दो तो भी मीनिंग रहेगा। He made the observation, क्लियर मीनिंग होता है। That's why this is called emphasizing. Fourth one, we have got ourselves into a mess. This is a reflexive pronoun. Reflexive pronoun अगर ourselves निकाल दोगे तो complete meaning नहीं होगा। We enjoyed ourselves at the party. We enjoyed at the party, वो complete meaning नहीं करता है। ourselves अगर उसमें ऐड करेंगे तो complete meaning होगा। You have set yourself an impossible goal. Reflexive. She was sitting by, no meaning. She was sitting by herself. Reflexive. I cannot bring myself to do it. I cannot bring myself to do it. These are the exercises of E. Now let's move to F. Exercise F. Underline the relative pronoun in the sentence. हम जानते हैं who है वो इंसान के लिए यूज होता है, which है वो रेस्ट ऑफ के लिए, और that है वो दोनों के लिए यूज होता है। ज्योति send a letter to her uncle who lives in नागपुर। तो who है वो अंकल के लिए यूज हुआ है और अंकल है वो इंसान है, इसलिए हमने वहाँ पे who लगाया है। और ये दोनों सेंटेंस के साथ अपना रिलेशन बता रहा है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। द पुलिस आइडेंटिफाइड द बर्गलर whose fingerprints were found on the doorknob. Second, the police identified the burglar whose fingerprints were found on the doorknob. तो whose है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो जो बर्गलर है उसके साथ अपना रिलेशन बताता है। whose मतलब किसका? बर्गलर्स। और सिंपली बोले तो ये बीच में आता है, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत में होता है और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स एम, इज, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, शैल, अगर ये सब होते हैं तब उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
अगर उसके बाद WH क्वेश्चन के बाद अगर नाउन आता तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। हुज बुक इज दिस, तो हुज बुक, उसके हुज के बाद बुक आया तो जो हुज है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और हु इज देयर, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द बॉय हु गेव मी अ पेन, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, सेंटेंस के बीच में है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड वन, राजू रिटर्न द बुक, राजू रिटर्न द बुक दैट बिलोंग टू मी, तो दैट है वो दोनों के लिए यूज हो सकता है, और खास यहाँ पे आंसर जो बीच है वो नॉन लिविंग के लिए होता है, लेकिन दैट है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, मतलब इंसान के लिए और इंसान के अलावा जो चीज़ है उसके लिए भी यूज़ होता है। तो दैट है वो वेरी इजी है, आप अगर बीच की जगह भी लगा सकते हो और हु की जगह पर भी दैट को लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी दैट है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, बीच में तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर शुरुआत में होता तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकता। कैटी loves watching films that make her laugh, तो यहाँ पे that है वो फिल्म के लिए यूज हुआ है, और फिल्म है वो नॉन लिविंग है, इसलिए हमने that यूज किया है। और that की जगह हम which भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम who यूज कर सकते नहीं। नाउ फिफ्थ नंबर, द ways that was displayed in the fair was bought by my aunt, यहाँ पर भी हमने that यूज किया है, वैसे वो नॉन लिविंग है, तो that की जगह हम वहाँ पे which यूज कर सकते हैं, लेकिन who यूज कर सकते नहीं। सिक्स्थ, I threw away the vegetables that were not fresh, यहाँ पर भी हमने that यूज किया है, वरना that की जगह हम which नो डाउट 100% यूज कर सकते हैं, क्योंकि that है वो कॉमन है, वो इंसान और इंसान के अलावा दूसरों के लिए भी यूज हो सकता है। नाउ सेवंथ, दिस इज द फैमिली whom we met in अमृतसर लास्ट ईयर, सो whom है वो फैमिली के लिए यूज हुआ है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर whom सेंटेंस की शुरुआत में होता तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता। He bought all the books that he needed to learn about rockets, और that है वो बुक्स के साथ उसका रिलेशन है, इसलिए हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। यहाँ पे that की जगह हम which 100% यूज कर सकते हैं, और that है वो कॉमन है। Now let's see G. Join this sentence using suitable relative pronouns. This is the boy. We asked him for directions. तो उसका ये दो सेंटेंस है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके जोड़ेंगे। दिस इज द बॉय whom we asked for direction. whom का मतलब होता है जिनको हमने पूछा था। These are the boys, they won the bronze medal in hockey. तो यहाँ पे boys हैं, इसलिए हम यहाँ पे who यूज करेंगे, या that भी यूज कर सकते हैं, लेकिन which यूज कर सकते नहीं। These are the boys who won the bronze medal in the hockey. So who is a relative pronoun, क्योंकि वो boys के साथ रिलेशन रखता है इसलिए। और यहाँ पे फिर देखो नेक्स्ट, द बुक इज आउट ऑफ स्टॉक, लता वांटेड इट।
तो यहाँ पे बुक के लिए हमें यूज़ करना होगा, तो हम यहाँ पे विच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे दैट यूज़ किया है। द बुक दैट लता वॉन्टेड इज आउट ऑफ स्टॉक। जो लता बुक चाहती थी वो आउट ऑफ स्टॉक है। दो सेंटेंस को हमने रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा है। दिस इज माई जैकेट द वन आई बॉट लास्ट मंथ। यहाँ पे भी जैकेट है वो नॉन लिविंग है, तो दैट या विच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दैट है वो ह्यूमन के साथ भी यूज़ हो सकता है। दिस इज द जैकेट दैट और विच भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द जैकेट विच आई बॉट लास्ट मंथ। Both answer can be right. Fifth one, John is a helpful boy. His father is an engineer. John, whose father is an engineer, is a helpful boy. तो यहाँ पे whose है वो जॉन के लिए यूज हुआ है, जिसके, जिनके। Whose is a relative pronoun. They hired the girl they interviewed last year. जो लास्ट ईयर जो गर्ल का उसने इंटरव्यू किया था उसको उसने हायर किया है, तो गर्ल है इसलिए whom लगाएंगे। They hired the girl whom they interviewed last week. Seventh one, we are going to hill station this summer. It is near Darjeeling. The answer is we are going to hill station. That या which relative pronoun can be used is near Darjeeling this summer. Eighth one, the man is resting is very, यहाँ पे WH होगा, हु होगा, यहाँ पे बीच नहीं हो सकता है, दैट हो सकता है। द मैन हु इज टायर्ड इज रेस्टिंग, द मैन दैट इज टायर्ड इज रेस्टिंग, बोथ आर करेक्ट आंसर्स। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। Correct the errors in the use of relative pronoun in this sentence. I spoke to yourself that your friend that seemed to be very pleasant and friendly. So, I spoke to yourself, your friend who seemed me very pleasant and friendly. But I think that the question given, I spoke to my friend that seemed, it is also 100% correct sentence. So there is no error. Now let's move to the second one. The discussion finally arrived at a point what everyone agreed. So on the place of what, we will use that or which. The discussion finally arrived at point that everyone agreed. Now, third one. Sunil Kumar, whom joined the school only last year, is going to be द स्पोर्ट्स कैप्टन। तो यहाँ पर whom की जगह who होगा या that भी यूज़ कर सकता है। सुनील कुमार who joined the school only last year going to be the sports captain। तो यहाँ पे whom की जगह हमने who लिखा है। दिस इज करेक्शन। फोर्थ वन, द न्यू साइंस लैब who cost a great deal of money is working rather well। तो यहाँ पे who है वो इंसान के लिए यूज़ करते हैं, वो लैब इंसान नहीं, इसलिए वहाँ पे हम यूज़ करेंगे which। द न्यू साइंस लैब which या that भी यूज़ कर सकते हैं। which cost great deal of money
is working rather well. Fifth, they stayed at a hotel whom owner knew him. तो whom है वो भी फिटिंग नहीं, वहाँ पे हमें whose यूज करना होगा. They stayed at a hotel whose owner knew him. whose उनके, और whom का मीनिंग इसके साथ सेट नहीं होता है. This is the singer who my parents admire. जो नहीं, जिनको तो मतलब होगा whom, जिनको का मतलब होता है whom. This is the singer whom my parents admire. Now the last one of the chapter. Ravis, whom owned a tour boat, took us on a ride on the lake. So whom नहीं होगा क्योंकि रविस के लिए यूज होता है. रविस who owned, रविस को नहीं, रविस ने किया है. रविस who owned a tour boat took us on a ride on the lake. So we have explained the pronouns and I have discussed about the difference between pronouns and adjective. Pronoun के बाद auxiliary verbs आते हैं और adjective के बाद, ये सिंपल अंडरस्टैंड समझने के लिए कि सिंपल चीज़ें, और अगर ऐसे वर्ड के साथ नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव हो सकता है. और एक क्लियर बात करना चाहता हूँ कि दैट है वो दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, इंसान के लिए और रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग के लिए. और विच है वो खाली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और हु है वो खाली इंसान के लिए. सो हमने we have tried our level best to explain and did all the exercises. I hope and trust you will also try at home to do yourselves. And it's very easy. Relative pronoun, interrogative pronoun, interrogative adjective, very easy. Demonstrative pronoun, demonstrative adjective, interrogative adjective, interrogative pronoun. So these are, and there is a slight difference between reflexive and emphasizing pronoun. Reflexive pronoun है, अगर वो सेंटेंस में से निकाल देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग होगा नहीं, ये खास समझने की ज़रूरत है. तो हमने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है. मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप भी घर पे अच्छा प्रयत्न करोगे. विश यू ऑल द बेस्ट.